Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have started your chapter number 7 in our previous classes. I hope you have attended those classes. Now from this video we will talk about and we will do some exercise, we will do some discussion on NCERT question answers of this chapter, and your chapter is about urban administration. We have discussed about so many things. We have discussed about the municipal corporation works, functions and many other things. हमने फॉर्मेशन देखा था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का और देखा था कि क्या क्या फंक्शंस करती है. Now what we have to do, answers करने हैं हमें. We have to give some answers of the questions. So I have solutions. So let's begin it. First question देख लेते हैं students. Why did the children go to Yasmin Khala's house? Yes. What was the matter of it? जब Maya and her companions were playing cricket in the street, suddenly they broke the street light. Okay, while playing the cricket. So अब ये जो है, it is out of their reach. उनके बस की बात नहीं थी उसे रिप्लेस करना. So then वे बहुत ही वरिड हुए. अचानक जब बात करते करते उन्हें पता चला, वे रिहाना के घर गए और रिहाना की मम ने उन्हें बताया कि ये जो स्ट्रीट लाइट है या जो रोड लाइट्स का मेंटेनिंग का जो काम है उनके एरियाज़ में, सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क रहता है स्टूडेंट्स. सो जस्ट गो टू यास्मीन खाला's house, she will tell you everything about municipal corporation. Why? Because Yasmin Khala has retired now from municipal corporation. She was employee of municipal corporation, so she can tell you better. So that's why they go to the Yasmin Khala's house. So students, it is all clear for you, and I hope you can write your answer in your own way, but I have solutions also. So the children broke the street light while playing cricket. As its replacement was beyond their reach, they were very much upset. They didn't know whom did the street light belong to. वे नहीं जानते थे कि ये जो street light है ये किससे संबंधित है, किसने इन्हें लगवाया है. ठीक है. They went to Rihana's mother, who gave them the knowledge that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing lights. Clear? So ये जो काम है replacement का, maintenance का, street lights का, ये information रिहाना की मम ने उन्हें बताया कि ये municipal corporation जो है उसका function है. Then she also told them that Yasmin Khala would be the best person because she had just retired from the municipal corporation. Yes, Yasmin Khala अभी retired हुई थी municipal corporation से. So she advised the children to go to Yasmin Khala's to get their problem solved. Clear? So that's why children had go to the Yasmin Khala's house. Clear? Okay. Question number 2. You have to list 4 ways in which the work of the municipal corporation affect the life of a city dweller. So जो सिटी में रहते हैं सिटी ड्वेलर्स यानी नगर के वासी, उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्क्स. ठीक है. सो हियर यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे स्टूडेंट्स. लिस्ट ऑफ 4 ways in which the work of municipal corporation affect the life of a city dweller. So here the list has been given to us. हमने देखना है पहला काम क्या करता है, क्लीनिंग एंड लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट एंड थोरोफेयर्स. सो जो चौराहे हैं और जो स्ट्रीट हैं उनकी लाइटिंग और उनकी साफ सफाई का काम कौन देखता है, यस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. देन सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यस फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर और यू कैन से सेफ ड्रिंकिंग वाटर. मीन्स कई बार जो होता है गंदा पानी जो है वो ना पिया जाए, इसके लिए जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, देयर आर हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स. वे ये तय करते हैं कि जो पीपल जो सिटी ड्वेलर्स हैं वे फ्रेश और सेफ ड्रिंकिंग वाटर उन्हें अवेलेबल हो सके. सो आगे क्या करता है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखता है. और क्या करता है, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, यस हमने देखा था इसके बारे में भी, एंड स्कूल, हॉस्पिटल एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज. सो देयर आर सो मेनी पब्लिक फैसिलिटीज provided by municipal corporation to city dwellers. Clear class? Okay. Then question number 3.
Who is a municipal councillor? So municipal councillor कौन होते हैं, किन्हें हम चुनते हैं? Yes, we know already that city has been divided into wards and we choose our representative for each ward. So जो भी representative होता है each ward का, उसे हम कहते हैं ward councillors. So यहाँ पे municipal councillors कौन होते हैं? A municipal councillor is an elected representative of a ward. Clear class? He is also known as ward councillor, जिन्हें हम पार्षद भी कहते हैं हिंदी में. Then question number 4. What did गंगाबाई do and why? गंगाबाई जो अपने एरिया में, अपनी गली में गंदगी से परेशान थी, उन्होंने क्या किया था? She went to the municipal corporation office, है ना, with councillor and so many women also. So उनके साथ वो वहाँ गई थी, उन्होंने बात की और फिर बाद में जो कमिश्नर है उसने अश्योर करवाया कि ठीक है, give me 2 days, I will repair all the things. Okay. So आंसर आप ऐसे लिखेंगे, गंगाबाई collected a large number of women and went to the municipal commissioner along with ward councillor to protest against garbage dumps all over the street. So उन्होंने इस तरह से प्रोटेस्ट किया था. हमने देखा था पब्लिक प्रोटेस्ट के बारे में, कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में. So प्रोटेस्ट भी करती है जब पब्लिक को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. विल डू, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क? सो कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है अपना पैसा कलेक्ट करती है अपने कामों को, फंक्शंस को करने के लिए. सो कहाँ से आता है पैसा? येस, वी हैव डिस्कस अबाउट द इनकम सोर्सेज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. येस, टैक्सिंग से, और जो गवर्नमेंट उन्हें ग्रांट देती है, प्लस डोनेशन बाय पब्लिक. सो यहाँ से आता है ना. तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे. The municipal corporation is the one of the most important organs of the three-tier government system. We have discussed about three-tier government system in our previous classes, students. हमने देखा था आपका स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट. इस तरह से हमने गवर्नमेंट के अलग अलग टायर्स को डिस्कस किया था ना. अब यहाँ से है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स designated area. It undertakes all the public facilities and welfare works like sanitation, water, road, education, health. So हमने देखा पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारे काम करती है. लाइक क्या क्या काम करती है? सैनिटेशन करवाती है, वाटर सप्लाई करती है, रोड के रिपेयर प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस मेंटेनेंस करती है, एजुकेशन के लिए काम करती है, हेल्थ के लिए काम करती है. सो देयर आर सो मेनी पब्लिक सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. और इन कामों को करने के लिए उसे क्या चाहिए? इनकम चाहिए ना. सो अब ये पैसा कहाँ से आएगा? स्टूडेंट्स, यू कैन राइट योर आंसर इन योर ओन वे ऑल्सो. सो हियर, as these work require funds, so it collects revenue from the residents living its corporation area. So जो municipal corporation का जो particular area है उसमें रहने वाले जो लोग हैं वे क्या करेंगे? उन्हें टैक्स देंगे, फंड देंगे. ठीक है. इट लेवीज टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी. सो हमने देखा था प्रॉपर्टी पे टैक्सेस होती है, जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स. ठीक है. और वाटर पे टैक्स है, अदर सर्विसेज पे टैक्स है. लाइक इफ़ यू गो टू वॉच अ मूवी, आप देखना मूवी के टिकट्स पे भी आपसे टैक्स लिया जाता है. सो एंटरटेनमेंट टैक्स आर ऑल्सो देयर. सो टैक्सेस आर फिक्स्ड ऑन द मेजरमेंट एंड कंजम्पशन ऑफ द सर्विसेज. ठीक है. सो ये टैक्सेस जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं अलग अलग सर्विसेज के कंजम्पशन के ऊपर. Taxes are levied on education and other amenities like owning a hotel, entertainment, etc. So अगर आप कोई शॉप खोल रहे हैं, कोई होटल खोल रहे हैं, तो आप अगर शॉप के ओनर हैं, ठीक है, सो आपको क्या करना होगा? टैक्स देना होगा ना. सो यही सोर्सेज होते हैं इनकम के. वी हैव डिस्कस अबाउट इनकम सोर्सेज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. फर्स्ट जो टैक्स लगाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो टैक्सिंग इज अ वन वे. देन जो ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से. देन थर्ड इज डोनेशन. सो डोनेशन से भी पैसा आता है. किसके पास आता है पैसा? जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके पास में पैसा आता है जो पब्लिक डोनेट करती है. ठीक है. डोनेशन से मीन्स जनहित में जारी, जो हम अपना वेतन, अपना इनकम में से कुछ हिस्सा जो है हम एज ए डोनेट करते हैं फॉर हेल्प अदर्स. सो
इस तरह से these are the major sources of income of municipal corporation, and that's why it can done and it can do their work properly. So students, we have discussed all the questions of your chapter number 7. I hope you have learned so many things from this chapter. We will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.